Yes, yes. So today there is a slightly different one. I hope all of you can see the screen and can hear me loud and clear. Yes, sir. Yes. Okay, Yes, good. sir. Yeah, very good. So now this is the different type what we have done before. So what we did before was basically, if you see that what is stowage factor, if we discharge the cargo, if we load the cargo, so we can calculate with the stowage factor how much space required and how many tons I can load in a particular space. So that was the whole thing. Now can you write down this numerical? So hold dimensions are given, and now this is to be loaded with steel pipes. Stowage factor is given, and second cargo paint drums. There also the stowage factor is given, and load density also given. So we have to calculate how much of each cargo we can load. इसको लिख लीजिए. Yes, sir. Yeah. बच्चे लिख लोगे तो बताना. Yes, sir. हो गया sir. Okay, all of you have written down. Yes, sir. क्या लिख लिया बच्चे? सबने लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया sir. ओके. कुंवर जी का फोन आ रहा था. चलो. Yeah. So can anybody tell me इसको how we will go?
You have an idea how to proceed? कैसे निकालेंगे इसको? So I'm just sharing the board. I hope all of you can see the board. Can you guys see the board? No सबको sir. दिख रहा है बच्चे? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। नहीं सर नहीं. सर नहीं दिख रहा, लाइट का रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है सर। लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? What I have written, can you read here? No. दिख रहा है सर. Okay. So आपको whole dimensions दिए हैं. We are going to load 2 cargos. Stowage factor of steel is given and stowage factor of paint drum is given to us, isn't it? Now ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े से अलग हैं कि इनको हम कैसे लोड करेंगे. सबसे पहले तो we calculate what is the volume of the tank, volume of the hold, what is the total volume available. 192. Okay, volume of hold is 8 into 6 into 4 is equal to 192 meter cube of space is there with me in the hold. Now he has given me the load density also. Now load density से what we can calculate? Any idea? So maximum amount of weight that can be loaded. Very right. So total amount of cargo that can be loaded. Total amount of cargo that can be loaded. We can calculate from the load density. So it is simple area. Load density is nothing. It is just how many tons per square meter. So here is mentioned that you can load only 3.2 tons per square meter. That means on 1 square meter, I can load only 3.2 tons. And my area is 8 meter into 6 into 3.2. 153.6. 153.6. या बच्चे आप अपना माइक तरह कर लीजिए. दीपक, व्हाट योर नेम? दीपेश. Okay, now we got two things. I have the total space with me 192 and total tons which can be loaded into that particular twin deck area of the cargo hold. Now we assume, so we say let P be the amount of pipes. Let amount of Total amount of cargo that can be loaded is in tons, no? yeah, metric ton. But why there is a line? That line is slash to metric per ton, meter per ton हो जाएगा ना? No, बच्चे. Load density is tons per square meter. Total cargo how much I can load on this deck. ये आपका होल्ड है. इसके अंदर में टोटल कार्गो इस डेक पे, ये आपका जो टैंक टॉप है, हाउ मच इट इज स्ट्रेंथन, इसके ऊपर मैं कितना कार्गो डाल सकता हूँ. दिस अमाउंट, दिस इज कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द टैंक इनटू द लोड डेंसिटी. सो इसके ऊपर मैं कितना, सो नेचुरली मेट्रिक टन्स, हाउ मेनी मेट्रिक टन्स टोटल कार्गो आई कैन लोड इनटू दिस होल्ड और ट्विन डेक और हैच कवर जिसके ऊपर है. दैट इज द मीनिंग ऑफ लोड डेंसिटी, इजंट इट? हमने इसको डिटेल में पढ़ा. Clear, sir, clear. Yeah, so it will be definitely metric tons. So 153.6 metric tons we can load, and total volume, total space जो मेरे पास है cargo hold की 192 meter cube. So let amount of steel pipes that can be loaded is equal to say P tons, and let amount of paint drums that can be loaded is equal to say D tons. That means P plus D should be equal to किसके बराबर होना चाहिए? P plus D 153.6. Yes, so P plus D दोनों कार्गो का अमाउंट जो है that should be equal to 153.6.
अब यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ इसकी, से आई से D विल बी इक्वल टू 153.6 माइनस P। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिंपल। टोटल कार्गो, I assume this is so many tons, other cargo so many tons, this both should be equal to 153.6 जो मेरी डेक की स्ट्रेंथ है। Also, now I go to the volume. Now I have imagined P tons I can load steel pipes. Now can you tell me what will be the volume occupied by these P tons? How we will calculate? 1.0 into P. 1.06. Yeah, 1.06 into P. This will be the amount of volume required by the steel pipes. Stowage factor is P. I am loading P tons, so that means P into 1.06 should be the volume required by steel pipes, plus how much volume will be required by your paint drums, which I have calculated, which I have imagined D tons. So that means that should be stowage factor of, 1.85. yes, 1.85 into D. This volume plus this volume should be equal to what? Total volume. 150. Yes, Total sir, total 190. space what I have. Isn't it? Volume required by steel pipes plus volume required by paint drum should be equal to the total volume available with me. Now what do? I put the value of D यहाँ पे, so ये आ गया आपका 1.06 P plus 1.85 into D की वैल्यू मैं यहाँ भर देता हूँ, 156 minus P is equal to 192. So can you guys calculate what is the value of P? Sir, 116.6. 116.6 tons. And D will be 37 tons. Yeah. So let's see that 1.06 into 1.85 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1.85 P. So ये आ गया आपका 116.6 metric tons of steel pipes I can load, and then rest remaining ये तो आ गया. So P means steel pipes equal to 1 pieces, that is steel pipes that can be loaded is 116.6 metric ton, and your paint drums will be equal to total I can load 153.6 minus 116.6. कितना आ गया ये? So 37. 37 tons of paint drums I can load. So your answer is steel pipes so much. Now further also he has asked something, that up to what height your steel pipes will come. So वो भी हमने देखा था when we are studying that load density, that if I know the amount of cargo, if I know the space occupied, then I can calculate before loading that in my cargo hold this cargo will come up to what height, isn't it? So can you tell me how much height these steel pipes will come? Height of steel pipes कैसे निकालेंगे? स्टोरेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, So volume occupied and then we will divide by the area. Very good. Very good. So this is what I wanted कि okay, height of steel pipes को calculate करने के लिए what do I need is the volume.
And how do I get the volume for 116 tons of 116.6 metric tons of steel pipes? If I multiply by the Stowage factor. So I know the Stowage factor of steel is 1.06. So 1.06 into 116.6 कितना आ गया ये? तो 123.6. This divided by area. मेरा एरिया कितना है? 8 into 6 48. So divide by 48. Area is 8 into 6. तो उससे मैंने डिवाइड किया. So your steel will come up to height of 2.57. देखिए कितना simple mathematics. But what all information I can get from this stuff? Then how much height this cargo will be loaded and how much of each cargo can be loaded. So as an officer, you know, in my hold is going to come up. Hold की height है आपके पास 4 meter up to 2.56 or 57. मेरी steel pipes आएंगी and rest remaining आप उसके ऊपर अपना पेन ड्रम्स या दूसरा कार्गो लोड कर सकते हैं. तो इसमें ब्रोकन स्टोरेज नहीं आएगा? कुछ पूछा ही नहीं उसने तो सीधा अमाउंट पूछा. यस, इफ ही गिव्स मी दिस इज द ब्रोकन स्टोरेज ऑफ दिस कार्गो, देन कैलकुलेट. फिर हम कैलकुलेट कर देंगे कि ओके हाउ मच स्पेस और हाउ मच ऑफ दिस थिंग इज रिक्वायर्ड इन द ब्रोकन स्टोरेज. वी एज्यूम कि इसने जो स्टोरेज फैक्टर दिया है दिस इंक्लूड्स योर ब्रोकन स्टोरेज. ठीक है, हमने उतना ही देखना, उतना ही सोचना जो क्वेश्चन में उसने दिया है, जो उसने पूछा कि ही हैज गिवन यू स्टोरेज फैक्टर, लोड डेंसिटी, and he's asked okay tell me how much of this each cargo can be loaded. So anybody any doubt? सर हाइट ऑफ स्टील पाइप फिर से बताइएगा. हाइट वाला? यस सर, हाइट वाला. या हाइट बच्चे निकालने के लिए देखिए, ओके मैं वापस इसको मिटाता हूँ. Now when I have to calculate the height of cargo means now I know the amount. How much height this 116.6 tons, how much? So height up to which this is the amount of cargo 116.6 tons cargo. कितनी हाइट तक जाएगा? कितनी हाइट तक क्या जाएगा? I think you won't be able to see नीचे. तो ये मेरी इक्वेशन थी बेसिकली, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं. देन सॉल्विंग 1 and 2. नाउ इफ यू सी योर होल्ड, नाउ यहां तक 3 मीटर है, सॉरी थोड़ा और ऊपर से यहां तक आई फील यार ये कार्गो जो मेरा स्टील का है वो कितनी हाइट पे आएगा, ये चीज मैंने निकालनी है. अमाउंट आई नो इज 116.6 टन है. How much height this cargo will come? So first of all, what do I want to know? I should know how much volume this amount of cargo, how much volume this 116.6 tons that will occupy. कैसे निकालेंगे? स्टोरेज फैक्टर दिया है आपको, isn't it? स्टोरेज फैक्टर क्या होता है? 1 ton of cargo will occupy how much space? So similarly, if I want to know how much 1 ton of cargo will occupy, so I know 116 ton of cargo will occupy how much? So straight away multiply by your storage factor, isn't it? अब आपने स्टोरेज फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया? कितनी आ गई है? हाउ मच वॉल्यूम आ गया आपके पास? 123.6. Yes or no? यस सर. Okay, so this much volume this cargo requires. अब इस वॉल्यूम को, आपके पास वॉल्यूम आ गया. If I divide by the area of this hold, which I know 8 into 6. Now area of the hold, so आपके पास height आ जाएगी. Height is equal to 120 total volume divided by area, that is 8 into 6. That will give you 2.57 meter.
All right. Yes, sir. Understood, बच्चे? Understood, sir. Good. So एक सिमिलर टाइप का, इसी टाइप का मैं आपको देता हूँ. Then you calculate that how much cargo will fit into your hold. एंड अगर उसने हाइट पूछी है तो वो भी आप निकाल सकते हो. Yeah, can you see this question? Cargo hold की dimensions are given, capacity is given to you, and load density is also given. Now this is to be filled to maximize the freight earnings. यार maximum cargo आप कितना उठा सकते हो? And cargo available is steel billets, and उसका freight भी दिया $70 per ton. And दूसरा cargo है cotton bales. तो हमने स्टील में पढ़ा था स्टील बिलेट्स, ठीक है, नीचे स्टील बिलेट्स लोड होंगे, ऊपर डनेज रखी है कॉटन बेल्स, एंड उसका भी आपको फ्रेट दिया $50 पर मीटर क्यूब. हाउ मच ऑफ ईच कार्गो विल यू लोड एंड व्हाट इज द फ्रेट ऑन? हो गया सर. वेरी गुड.
How much of steel billets you got? Sir, steel billets 342.9 tons. And how much of cotton bales? So 1307.1 tons. 130. 1307.1. And sir, total freight earned is 206,997. So let the other people also do. Sir, freight 207000. 207 is it or 206? How much you Why got? is it 207000? ओके, चलो आपने थोड़ा राउंड अबाउट कर दिया. Yes. क्वांटिटी थोड़ी फर्क होगी. 343 या 342? सर 342.86 मतलब एग्जैक्ट लिया था सर. वो तो $24,000 आया था उसका. ओके ओके. यस सर, एंड उसका 3660 लिया है. ये डिफरेंस है बस. ठीक ठीक है. यस. तो द आइडिया इज दिस क्वेश्चन में, चलो बाकियों को भी करने दीजिए. प्लीज डू इट, राइट द क्वेश्चन, डू इट नीटली. आपके पास सारे स्टेप्स हैं. थोड़ा मैंने बीच में एक दो मिस किए हैं, बट आपने राइट द स्टेप्स लाइक दिस, देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. P is equal to this much, that means steel pipes is equal to this much. And second, and इस केस में स्टील बिलेट्स, कॉटन बेल्स एंड फ्रेट. यहाँ पे थोड़ा सा आपको you got to be careful because he has given you two cargoes whose freight is charged on different specs. One is by tons, that is deadweight cargo, and second is as per the volume. Cotton bales freight is as per the volume. So there you have to calculate, you know the tons, cotton bales are so much. Here you have to calculate the again the volume, that how much volume these many tons of cotton bales will occupy. And then once you know the total volume occupied by the cotton bales, and freight is $50 per meter cube, so many meter cube will earn you, and then total up. So ये आपके steps जो हैं clear होने चाहिए and systematic. Yeah, all of you are done or still somebody is doing? Anybody, any doubt? कर रहे हैं सर अभी. कोई बात कीजिए, आराम से कीजिए. Let me know when all of you finish.
सर आंसर क्या है इसका? ये बच्चे सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, देखो नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा। सर क्लियर नहीं है थोड़ा। हाँ उसको अनशेयर करना पड़ेगा, फिर क्लियर दिखेगा। Yeah, the answer is steel billets 342.86 and cotton bales 1307. Yeah. अच्छा टन्स में, ओके सर, ओके ठीक है सर। सर फ्रेट आ रही है 207,000। Okay. Okay. You can see the steps. Total load density 5. Maximum load that can be loaded is 1650. Let the weight of steel billets be S and C. This is equal to so much. And second equation is again equal to the. Please be very careful. Do not take the total volume. He has given you the bale capacity, so we have to utilize the bale capacity 3900. And then this is how it works out. एक बार पिछली स्लाइड दिखाएं। Yes. Okay, clear? Yes, sir. Yes. Chalo, good. Let me know that all of you finished. Anybody still doing it? Yes, sir. Still doing. Okay. सर आंसर्स दिख नहीं रहे। बच्चा आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। Can you see your screen? हाँ जी सर दिख रहे। स्क्रीन पे है। नो नीड बोर्ड को देखने की बजाय स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। सही है सर। चलो हो गया सबका, नेक्स्ट चले। Should we proceed for the next one? यस सर। Yes. Yeah, okay, good. Now आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी लिखिए पहले। सर 1 मिनट बैक स्लाइड सर, मेरा फ्रेट अलग है सर। कुछ स्टील बिलेट्स का फ्रेट आपने उसके टन्स पे निकालना है। $70 पर टन, so 342.86 multiplied by 70, it gives you 224,000.2. And second is your cotton bales. This freight is on cubic meter. It is voluminous cargo. The freight is charged not as per ton. So here you have to convert
to volume. So very simple, metric ton multiplied by stowage factor of cotton bales into $50, 182,999.6. सर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ सकता कि ऐसी कंडीशन बताइए कि कितना लोड किया जाए कि मैक्सिमम फ्रेट मिले हमें? सर वो तो कैसे ये हो तो सकता? है, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम हमने ले लिया, इसी से मेरे को मैक्सिमम फ्रेट मिल गया। अगर सर कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें मतलब हम कॉटन थोड़ा ज्यादा लोड करें या बिलेट्स थोड़ा ज्यादा लोड करें तो उस Yeah. हिसाब से आए फ्रेट ज्यादा बने कुछ, ये तो सर हमने उसके बेस पे किया कि हम होल्ड होल्ड कर रहे हैं। करेक्ट, या आपका है कि यस, उसने यही पूछा कि मैक्सिमम हम कौन सा कार्गो कितना ले सकते हैं। Yes, तो sir. इसमें आपको या बेसिकली दिखा देगा। सो इन केस ही सेज द मैक्सिमम इवन इफ वी ट्राई कि यस वी स्टार्ट लोडिंग कॉटन बेल्स मोर, सो दैट अगेन डिपेंड्स कि आप यहाँ से कम हो जाएगा। सो दैट हिट एंड ट्रायल की बजाय फॉर्मूला से बेसिकली नो दिस इज व्हेन वी आर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, ये आपको मैक्सिमम कार्गो यही देगा कि दोनों कार्गो को उससे एडजस्ट कर देगा कि मैक्सिमम ये कार्गो और मैक्सिमम ये कार्गो। ऑफ कोर्स व्हाट यू आर सेइंग इज फ्रेट, यस वी स्टार्ट लोडिंग कॉटन बेल्स लिटिल मोर बिकॉज अभी आपने फ्रेट देखना है, इसका फ्रेट अगर दोनों का टन्स में नहीं है, यहाँ पे तो $70 पर टन है, तो इसका भी आप कार्गो, इसका भी फ्रेट है। आप कर सकते हो रिसर्च कि इसका मीटर क्यूब के हिसाब से कितना आ रहा है। यहाँ उसने ज़्यादा दिया 70 है, यहाँ पे कम है 50 है। So और इसे that compare becomes कर an सकते हैं exercise. दोनों Yes. So but हमें उसने Analysis क्वेश्चन में पूछा work नहीं है। करके। So yeah. So whatever is asked, we can do this way. But otherwise, of course, if you want to load more cotton bales, we can calculate the space wise. दोनों कार्गो हैं। See, sometimes both amount of cargos are booked. कि भी इतना कार्गो ये है, इतना कार्गो ये है, अमाउंट ऑफ फ्रेट चार्ज। तो मैक्सिमाइज द फ्रेट कि हम अपनी तरफ से मैक्सिमम दोनों कार्गो भी उठा रहे हैं और मैक्सिमम कितना उठा रहे हैं उससे हमें फ्रेट इतना मिल रहा है। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जस्ट टू कैलकुलेट कि आपको परमुटेशन कंप्यूटेशन लगानी पड़ेगी, इसको मैं ज़्यादा करूँ, इसको कम करूँ, फिर इसको ज़्यादा करूँ, इसको कम करूँ। नो। ओके, या चलो इसको लिखिए। वेसल डेड वेट 5080, 500 tons fuel, so much of stores, and she has got 4 holds and now required to load grain and bales of cotton.
सर पूरी वॉल्यूम के एक साथ निकाल के डिवाइड कर सकते हैं? देखिए आपको 2 कार्गो लोड करने हैं। सर पूरी वॉल्यूम की को एक वॉल्यूम बना के इक्वेशन बना के उसके बाद में डिवाइड कर दें, इतना कॉटन ऊपर ऊपर कर दो 4 होल्डर में और इतना नीचे नीचे, पर नहीं होगा नहीं। सबकी वॉल्यूम अलग है। Yes. सर बोर्ड ब्लर है सर, बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं, अभी बोर्ड नहीं आएगा बच्चे, बस आपकी अनशेयर करूंगा तब क्लियर होगा। क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. All of you have written down the question? Yes, sir. Okay. अब आपका बोर्ड क्लियर रहेगा आपको। सो एनीवे यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट हाउ मच ऑफ ईच कार्गो यू कैन लोड, एंड आपके पास शिप दिया है इज बट 4 होल्ड्स एंड ईच होल्ड द क्यूबिक्स आर गिवन, द कैपेसिटी इज गिवन फॉर दिस होल्ड्स, and you have to distribute the cargo, that how you are going to store which cargo where. First we must have calculated how much of grain you can load and how much of cotton bales we can load. सबसे पहले तो निकालिए हाउ मच टोटल कार्गो यू कैन लोड, हाउ मच कार्गो यू कैन लोड टोटल? सर 4230। 4230।
Yeah, how much you guys got the cargo? Again, grain and cotton bales. So cotton base 820.55 Okay. and 3409.45. Okay. Now you have to distribute this cargo. कि आप इसको कौन से होल्ड में कौन सा कार्गो डालोगे? सर सेकंड होल्ड में कॉटन बेल डाल के बाकी में ग्रेन. या गुड. तो आपने क्या करना है, पहले इसमें से देखना है कि हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, इजंट इट? सो कॉटन बेल्स को कितनी स्पेस चाहिए? 1928.29. या तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपके पास टन्स हैं एंड व्हाट इज द स्टोरेज फैक्टर? सर कॉटन बेस का 2.35. ओके, सो आई मल्टीप्लाई द स्टोरेज फैक्टर बाय 1928.29. Yeah, 1928.29 meter cube of space is required for cotton bales, and similarly for ग्रेन grain, के लिए सर 4943.7. yeah, 4349.37. सर 4943.7. 4943. Okay. 0.7 सर 70. Okay. So now the picture is clear that you know that you need so much space for this cargo and so many tons of this cargo can be loaded, and same is grain, so much can be loaded, and you multiply by the storage factor of grain, so you get the total volume required. And आपके पास सारे holes का total volume as it is you have totaled up before calculation के लिए, and यहाँ से आपको दिखता है कि yes this 1928 जो है इस होल्ड की स्पेस 19, सो थोड़ी सी स्पेस मेरे पास एक्स्ट्रा बचती है, नेवर माइंड, बट दिस कार्गो कैन फिट, फुल कार्गो कैन फिट द कॉटन बेल्स 820.5 टन एंड रेस्ट इन सब में आपका ग्रेन. तो सर ऐसा नहीं होगा 1, 3, 4 में ग्रेन डाल के जो बचा हुआ ग्रेन है नंबर 2 में भी डालेंगे? वो डाल के देखिए, स्पेस नहीं वेस्ट होनी चाहिए. सर हमने आंसर तो इसी तरीके से निकाला ना, मैक्सिमाइज करने के लिए, तो थोड़ा बच रहा है ना 1972 और 1928. क्या ठीक है. सो अभी आप देखिए आएगा थोड़ा इसमें. दिस इज द बल्क ग्रेन, अभी उसके साथ कॉटन बेल्स आप लोड कर रहे हो, तो यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा मेरे पास स्पेस बच रहा है, एंड ग्रेन मेरी 3 होल्ड में पूरे के पूरे होल्ड्स फुल हो रहे हैं, सेग्रीगेशन, इजंट इट? तो इंस्टेंट में करने को सब ग्रेन का वॉल्यूम तो ज्यादा है ना सर, 1, 4, 3 और 1, इन तीनों को मिला दें फिर भी जो हमारे ग्रेन का वॉल्यूम आया सर वो ज्यादा है. तो थोड़ी सी ग्रेन आपकी कम आएगी, सो आपको होल्ड वाइज करना है कि इसमें 15 कर दो, इसमें 2000, इसमें इतनी, सो थोड़ी सी आप ग्रेन कम लोड करेंगे, तो हो सकता है 3409 से थोड़ी सी ग्रेन कम हो जाए. सो दिस होल्ड इज वेरी सूटेबल. एंटायर कॉटन बेल जो है आपको कोई सेपरेशन नहीं, कोई सेग्रीगेशन नहीं, आप इसमें डाल दीजिए. अगेन आई टोल्ड यू देयर आर मेनी वेज, सो दिस इज द मोस्ट इजी. थोड़ी सी स्पेस मेरी जाती है, बट कार्गो इज. सर हम दोनों एक में लोड नहीं कर सकते? एक में क्या चीज लोड करोगे? मतलब सर 2 नंबर होल्ड में जो हमारा ग्रेन बच रहा है उस ग्रेन को भी डाल दे और कॉटन बेल्स को भी रहने दे, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं कि सेग्रीगेशन जरूरी है होल्ड वाइज. बच्चे आप देखिए लिखा नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ कॉटन बेल्स के ग्रेन आप कहाँ डालोगे? कॉटन बेल्स के ऊपर तो लोड नहीं करोगे. नीचे सर, सबसे नीचे. हाँ नीचे करोगे ना. इमेजिन 10
कि आपने यहाँ पे ग्रेन लोड की हुई है, कर सकते हो आप, उसके ऊपर आपने कॉटन बेल्स भर दी, फिर टारप्लिन वगैरह डाल के सर फिर कॉटन बेल्स रख सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो सर हमारा आंसर के अकॉर्डिंग सही हो गया, हमने मैक्सिमाइज सब यूज कर ली सारी स्पेस। यस, बट देखिए हमने आंसर के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी देखना कि इतनी थोड़ी सी ग्रेन के लिए अगेन द कमर्शियल एस्पेक्ट एवरीथिंग, उसको लोड करना, उतना अमाउंट लोड करना, सो बेसिकली कि भी ठीक है, वी अवॉइड। अब अनदर है कि यस इवन आई कैन लोड ग्रेन, सारे होल्ड्स में मैं यहाँ तक ग्रेन लोड करता हूँ एंड फिर उसको यहाँ पे मैं ओवर स्टोर भी कर देता हूँ विद द कॉटन बेल्स। कहने को ये भी मेथड, वी आर ओवर स्टोरिंग बिकॉज द ग्रेन हैज टू बी ओवर स्टोर्ड, अदरवाइज हाफ होल्ड तो नहीं ले जा सकते, ग्रेन विल शिफ्ट, तो ये भी कर सकते। बट आपके लेवल पे सिंपल है कि यस आपने उसने जो दिया है कि इतनी स्पेस है, थोड़ा सा मेरे पास कार्गो वेस्ट हो रहा है, यू कैन शो ऑल्सो कि यस अगर आपको लगे, बट प्रैक्टिकली यार थोड़ी सी ग्रेन के लिए उसको नीचे दबाएं और सो मच ऑफ कार्गो का ऊपर से उस पर लोड डालें, सो मच ऑफ ओवर स्टोइंग, तो ग्रेन तो खराब हो जाएगी, isn't it? तो स्पेस वाइज तो ठीक है, वो आपको ठीक लगेगा, बट इफ आई हैव टू लोड कॉटन बेल्स ऑन टॉप ऑफ दिस ग्रेन, so many of this extra cost, everything will come into picture. So I'll restrict कि ठीक है थोड़ा सा कम कीजिए, सारी की सारी ग्रेन सेपरेट होल्ड्स में अपनी आ रही है एंड फिट भी हो रही है। सो आपके लेवल तक बेसिक ग्रीन क्वेश्चंस में what they are seeing is that how you are fitting the space, how you are utilizing the space. तो सर जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें अभी नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 1 इन तीनों का वॉल्यूम है 4900 और हमारे ग्रेन का वॉल्यूम है 4943, तो 43.7 टन हम ग्रेन कम लोड करेंगे, करेक्ट सर? सो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि इसकी जितनी स्पेस है, अगेन वॉल्यूम है आपको, आप इसको डिवाइड कर सकते हो स्टोरेज फैक्टर से भी, सो मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन, जैसे यहाँ पे लिखा हमने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेन सो मेनी मेट्रिक टन, यहाँ पे भी ग्रेन सो मेनी मेट्रिक टन एंड यहाँ पे भी ग्रेन सो मेनी मेट्रिक टन। ओके, सो कम होगा, नेवर माइंड, थोड़ी सी स्पेस, यस आई एग्री विद यू कि थोड़ा ग्रेन कार्गो कम होगा बिकॉज ये स्पेस मैंने छोड़ दी है, दिस इज ओनली फॉर कॉटन बेल। और इमेजिन प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स शिप इज अ कमर्शियल वेंचर, इजंट इट? सो इट्स नो पॉइंट कि जितना मेरे को फ्रेट नहीं मिला, जितना मैं उसके अंदर कार्गो लोड करूं, डनेज लगाऊं, लेबर लगाऊं, तो इट विल बी मच बेटर टू लीव दिस मच स्पेस जिसमें जिससे मेरे को इतना फ्रेट नहीं मिलने वाला। या तो ना कि ओके इफ आई स्पेंड 1000 रुपीज एंड आई एम गोइंग टू अर्न 10,000 वायबल, बट इफ आई स्पेंड 10,000 एंड इन रिटर्न मेरे को 1000 रुपीज भी नहीं मिलने वाले। ओके, दिस इज द होल आइडिया कि यस इस कार्गो को हम ऐसे करेंगे, इसको छोड़ दें। हाँ कंपल्शन है समटाइम, यस कंपल्शन कम की नहीं भी ये पूरा का पूरा ग्रेन लेना है, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट, देन वी विल सी कि ओके कहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर जो आप बता रहे हैं सर वो तो मैं प्रैक्टिकली बता रहे हैं ना कि इतना हमें नहीं करेंगे, इतनी चीज के पीछे प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें ज्यादा नुकसान होगा। सर क्वेश्चन तो कह रहे हैं हाउ मच ऑफ ईच कमोडिटी कैन बी लोडेड इफ द वेसल इज डाउन टू हर मार्क्स एंड फुल टू कैपेसिटी। डाउन टू मार्क्स नहीं आएगा सर, अगर हम ये बोल देंगे कि हम 4900 लोड कर रहे हैं सिर्फ, तो फिर सर हम क्वेश्चन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। No, it is okay. This much is okay. That how much she will be, कितने सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, doesn't make much of a difference. तो आपको सिर्फ है कि मैं कार्गो, मेरा कार्गो एडजस्ट हो रहा है, कितने क्यूबिक्स आपके यहाँ वेस्ट हो रहे हैं, 1928 और 72, हार्डली यानी 40 मीटर क्यूब। ओके, सो डोंट वरी क्वेश्चन वाइज कि यस आपने सिर्फ ये देखना है कि यस मैंने ग्रेन, उसने क्वेश्चन को बनाया ही ऐसा कि थोड़ा सा आपको दे दिया है। हाँ जी सर। अगर इफ यू फील वो भी गलत नहीं है, आप लिख दो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि कार्गो प्लान इज देयर आर मेनी वेज, कि ठीक है मेरे को ग्रेन लोड करनी है, मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ, जितनी आपके पास बची आप उसको डाल दीजिए, क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, इट इज नॉट रॉन्ग, आप इसको कर भी सकते हो, शो भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट शो, आई से कि ठीक है यू लोड दिस मच स्पेस इज रिक्वायर्ड इन माई ओपिनियन दिस मच। अगर आप यहाँ पे ग्रेन दिखाते भी हो कि जितनी आपकी ग्रेन बच गई है, ठीक है मैं यहाँ ग्रेन लोड करता हूँ, दैट इज ऑल्सो नोबडी शुड कट योर मार्क्स, इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, तो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि अगर मैं लोड करता हूँ, ठीक है नीचे ग्रेन लोड कर दी, ऊपर लेवल इतनी सी ग्रेन के ऊपर
अभी कितनी मैंने ग्रेन लोड की, वो लगता है पूरा टैंक टॉप पे अगर आप देखिए तो हार्डली एनीथिंग, इट विल बी जस्ट लाइक स्वीपिंग्स, हाँ जी सर। isn't it? इतना बड़ा होल्ड है, कार्गो होल्ड का इमेजिन कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लोड कर रहा कि इट लुक्स समथिंग फनी कि यार 40 मीटर क्यूब की जो ग्रेन है वो तो एक सम का पूरी सर- आएगी भी नहीं, यही कोने में लोड कर दो, आपको क्या सर चाहिए ये कोने में? हाँ सर, ये होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एक बार और समझा सकते हैं? होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अब आपके पास ये जो देखिए, हाँ ये मैट्रिक टन कैसे निकालोगे? हाउ डू टेक आउट द मैट्रिक टन? इस होल्ड नंबर 4 में कितने मैट्रिक टन ग्रेन, इसमें कितनी, और नंबर 1 में कितने मैट्रिक टन ऑफ ग्रेन आएगी, कैसे निकालोगे? सही, ये तो स्ट्रेच फैक्टर से होता है। हाँ सिंपल, आपके पास क्यूबिक्स हैं, इस होल्ड के क्यूबिक्स कितने हैं 1530, डिवाइड बाय स्टोरेज फैक्टर सो मेनी मैट्रिक टन, इसका क्यूबिक्स आपके पास हैं, डिवाइड बाय स्टोरेज फैक्टर सो मेनी मैट्रिक टन, यहाँ पे सो मेनी मैट्रिक टन, सो टोटल ग्रेन आपकी जो टोटल करके आती है, क्योंकि यहाँ नीचे लिख सकते हैं टोटल ग्रेन इन 1 3 4 होल्ड सो मेनी मैट्रिक टन, कॉटन बेल्स इन नंबर 2 होल्ड सो मेनी मैट्रिक टन, आंसर। ओके क्लियर? सर क्वेश्चन में तो ग्रेन कैपेसिटी गिवन थी ना वैसे। Yeah, he has not mentioned. So अगर वो mention, no, he has not mentioned. So I am assuming it is a grain capacity. हाँ सर, मतलब वो ग्रेन ही अज्यूम करिए, तो मतलब वही सोच के सेकंड में डाला था कि अगर बेल्स डालेंगे तो बेल कैपेसिटी को ऑब्वियसली कम ही होगी सर ग्रेन से, Definitely, इतनी definitely. वेस्ट तो सर होगा ही। Yes. So जैसा जैसा अगर क्वेश्चन में मेरे को देता है, because we cannot calculate the grain and the bale capacity, it should be given to me. Total volume मैं calculate कर सकता हूँ, length, breadth and depth से I can calculate. But he has given me here, maybe these are the two holes और सबकी उसने space दे दी। So I assume that कि both the cargos bulk है तो ग्रेन कार्गो, तो यहाँ पे वैसे भी स्पेस जो है कि अगर जब मैंने करनी है तो मेरे पास वैसे भी और स्पेस बचेगी, बेल कम हो जाएगी सर। बेल स्पेस कम हो जाएगी, बिकॉज बेल्स जो हैं वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगी, सो मेंटली यू आर कन्विंस्ड कि यार ठीक है मैं नंबर 2 में लोड कर रहा हूँ, वहाँ पे वैसे भी जब ये बेल कार्गो आएगा तो बेल कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो वही अप्रोक्सीमेटली उतनी आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली उतनी आ जाएगी, तो नो नीड टू शो द ग्रेन है कि नहीं भी, बिकॉज लिखने को अगेन यू कैन राइट क्योंकि व्हेन आई एम लोडिंग द बेल एज्यूमिंग दिस इज द ग्रेन कैपेसिटी। एडिशनल रिमार्क अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है आप लिख सकते हो, बट व्हाई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट, एज्यूमिंग ऑल ओके दीस capacities given are grain capacities, and when I load in number 2, so that will definitely space will be less. Okay, चलो आई होप यस सर। एनी डाउट्स किसी का? अब आपको यहाँ से कार्गो प्लानिंग भी दिखनी शुरू हो गई, isn't it? So this is what is basically like a cargo plan. After the T, now we will discuss about the cargo plan. अब आपको आइडिया आ गया स्टोरेज फैक्टर, हाउ मच स्पेस, हाउ मच दिस, एंड इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया कि नाउ आई विल शो दिस, जितना भी आपका कार्गो आता है यू आर शोइंग दिस कार्गो, एंड देन हाउ वी एक्चुअली राइट, फाइनली हम कैसे प्लान बनाते हैं ताकि नेक्स्ट पोर्ट में जब शिप जाए तो उनको देखना चाहिए कि हाँ भाई कौन से जहाज कौन से होल्ड में कितनी स्पेस है, कौन से होल्ड पे कौन सा कार्गो है, स्टीविडोर्स हु आर गोइंग टू डिस्चार्ज। चलो हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, टेक अ ब्रेक, एंड अब आपका सीक्वेंस बन जाएगा, अब आपको कार्गो प्लान बनाना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, सो वी मीट आफ्टर 15 मिनट्स। ओके, तो सर हमें लिखना पड़ेगा क्या लास्ट में कि वी आर नॉट लोडिंग 43.7 टन्स? नो नीड, डोंट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरी, ठीक है? ओके सर, या जस्ट आपने कैलकुलेशन कर दी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कार्गो निकाल लिया, एंड देन मेक दिस टाइप ऑफ प्लान। ओके, ये आपने डिस्प्ले जो है दैट स्केच जो है वो बनना चाहिए 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको और सजावट से बनाइए, स्ट्रेट लाइंस लगाइए, रफ हैंड से नहीं है, कि दिस इज बेसिकली द कार्गो प्लान इज हाउ कार्गो विल लुक लाइक, इस होल्ड में क्या कार्गो। चाय के बाद आइए फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कार्गो प्लान, बेसिकली होता क्या है, यहाँ से आपको आइडिया भी आ गया थोड़ा सा, वही चीज़ कार्गो प्लान में यूटिलाइज होती है। दीज आर द प्रिंसिपल्स विच वी आर गोइंग टू यूज
in while making the cargo plan. चलो ठीक है, चाय पी लीजिए। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट के बाद मीन्स 50, 12:50 और 12:55। बोलो बोलो। ठीक है सर, 55 सर ठीक है। 1300 चलो 12:55 ओके 1300 सर। ओके चलो 1300 एज यू विश। ये ऑप्शन नहीं था। थैंक यू सर। या गुड गुड थैंक यू सर। या वेलकम।